Jai Hind to all of you. So as we have completed our van der Waal equation for real gases, I hope you understood what they trying to say, how they you can say how they improve the pressure and volume in the ideal gas equation by changing the pressure correction and volume correction terms. Then I already sent you the video of compressibility factor, in which we have done if z is equals to 1, then it is gases are behave like a ideal gas. If z is less than 1, then there is a negative deviation. If z is greater than 1, there is a positive deviation. So which explain the expansion and contraction of the gases also. So we already have done the numericals up to 5.8 of this chapter. So today we start with the numerical number 5.9. So some of the numericals, some of the you can say I only write the formulas and you can do it yourself, because most of the numericals are based on the ideal gas equation. So it is only how you manage that equation to solve your questions. Fine. So question number is 5.9. Then there is a density of gas is found to be इतनी. ठीक है, डेंसिटी कितनी है गैस की 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. सो 27 डिग्री सेल्सियस को जब आपको केल्विन में चेंज करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड 273, सो इट बिकम 300 केल्विन. फाइन. एंड प्रेशर इज 2 bar. So now this is the density which is found at this pressure. So you have to find the density at standard temperature and pressure. So density find करने के लिए, if you remember, we have done one relationship between the pressure and density, that is d r t upon m. Have you remembered this? And how this equation is formed? This is from the PV is equals to nRT from ideal gas equation. This equation is formed from ideal gas equation. And how it is formed? PV is equals to n number of moles क्या होते हैं? Given mass upon molar mass. Fine. So this is the mass divided by molar mass RT. And when we write like this, m upon V RT upon m. So this m upon v is equals to density, and this is your equation. Fine. This is the pressure, density, r gas constant, temperature and molar mass. Fine. So now we have to find the density. So we can say that what is given to us? Density 1. This is your density 1, temperature 1 and pressure 1. डेंसिटी 2 आपको फाइंड करनी है. ठीक है. और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होगा, तो प्रेशर आपको इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 2 बार है. तो आप इसको जो स्टैंडर्ड STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर एट STP आप प्रेशर क्या लोगे? 1.0132 बार. और टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो डेट इज़ 273 केल्विन. ठीक है. अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, या इसको हम लिखें कुछ इस तरीके से, D1 P1 M R T1, ऐसे ही D2 P2 M R T2. सो एज यू नो, क्योंकि इसमें क्या है, डेंसिटी क्या होती है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. M एंड R दोनों में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो ये क्या बन जाएगा? D1 इज इक्वल्स टू P1 T1, D2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2. तो जब हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, आप इन इक्वेशन को write it like this,
d1 upon d2 is equals to p1 upon इसको आप ऐसे लिखोगे, आप इसको ऐसे ना लिख के यू राइट लाइक दिस, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी 2 फाइंड करनी है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूँगी, d2 इज इक्वल्स टू d1 p2 t1 e1 t2। फाइन। सो इन दिस वे वी फाइंड द डेंसिटी। अब आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, तो यू फाइंड योर आंसर। फाइन। सो इन दिस वे यू फाइंड डू दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है। सो और आपका आंसर आ जाएगा राउंड अबाउट 3.04 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। डेंसिटी आपको d1 गिवन है, सॉरी दिस इज़ d2, d1 आपको गिवन है। ठीक है, दिस इज़ योर d1, टेम्परेचर, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, तो आप सब फिल कर देंगे। जब आप सब सॉल्व करेंगे तो यू फाइंड दिस आंसर। ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5.8। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5.9. Sorry, this is 5.9. Question number 5.10. Now question is, now this is again very simple question, so you can do yourself. 34.05. Question is 34.05 ml of phosphorus vapor. Phosphorus vapor weigh इतने ग्राम एट इतने टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोलर मास। तो सिंपल, आप इसमें आइडल गैस इक्वेशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल्स टू nRT, पी वी इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, m इज इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा mRT अपॉन PV। ठीक है। सो इस तरह से आप अपने, नाउ यू कैन ऐड द वैल्यूज़। आपको मास यहाँ गिवन है, मास कितना गिवन है, मास इज 0.0625 ग्राम। टेम्परेचर कितना है, 546 डिग्रीज प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 9, 7 + 4 केल्विन में टेम्परेचर आ गया आपका। प्रेशर क्या है यहाँ पे, 0.1 बार। ठीक है। देन what is given there is मिलीलीटर्स में आपको वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम इज नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम इन दिस क्वेश्चन इज 34.05 ml में गिवन है, तो मिलीलीटर्स को आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये जब लीटर्स में कन्वर्ट करोगे 34.05 × 10⁻³ लीटर्स। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे इसमें, तो यू कैन फाइंड योर आंसर, एंड द आंसर इज that is 125 ग्राम पर मोल।